What about working with Smriti Irani? It's not something that I cherish very much in my life. क्यों? क्या हुआ था? She thought she could tell me to leave the room, and she did. And I told her to leave it if she wanted to. And after that, it became very unpleasant for me to continue working in that show. Were you surprised when she beat Rahul Gandhi in Amethi? I don't get surprised by anything in politics. I was not at all surprised even when she got beaten by the gentleman Kishori Lal. Kishori Lal ji. So I wasn't surprised at all. इतना बड़ा जो उन्हें प्लेटफॉर्म मिला, it should not be a self-centered, ego-driven trip. It could have been used to empower children, to empower women, to be that voice that we all wanted to be proud of. I didn't see that happen. I was told that Smriti Irani ji is there and she's the main speaker. While she was talking, I left because I'm not interested in listening to anybody's story about I came from such humility and look at where I am today. Well, what are you doing with what you've got? आप उस वक्त शो के एक एक्टर के साथ, सुमित सचदेव के साथ रिश्ते में थी, तो ऐसा क्या हुआ किरण कि नहीं, ये रिश्ता खत्म करना है? जो एकता तक मैसेजेस पहुंचते थे वो शायद सही नहीं होते थे, लेकिन मैं इस लेवल पे एकता को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि जब उनको पता लगा कि कहीं पे मेरी कोई गलती नहीं थी, तो शी वॉज हम्बल इनफ टू इवन स्पीक वेरी पोलाइटली टू द लेवल ऑफ अपोलोजाइजिंग. Vinod Khanna had joined. He was Osho's gardener. The elders in our family always said that Osho ashram, Osho environment, Osho people, there is promiscuity. मुझे लगता है कि आपके बम्बई में तो ये माहौल बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट बम्बई के लोगों को हक ही नहीं है ये पूछने का. His car collapsed in a river in Uttarkashi. All we found was the parts of his car. मुझे इतना पता था कि मैं एक ऑनेस्ट इंसान के सामने बैठूंगी who has the courage to ask me questions that most people would not. करिश्मा ऑफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी. Yes. Welcome to the Vicky Lalwani show, Kiran Dubey. Vicky, it's an absolute pleasure. I'm happy to be here, and you know I've traveled rather far to be here with you. I won't waste any time, but straight away ask you rather that are you coming in Kyonki Part 2? As of now, I've not been approached, but let's see how things go. My experience with working in the first part was very interesting, and I'm actually just really looking forward to what the story is going to be of the part 2. My life has beautifully moved away from the time I moved away from Bombay, and I'm doing my own things. I'm living my own life. I've recently done a film. So it's been a conscious decision on my part not to do television, because at the moment I don't have the kind of time that I had when I was working full on with television and the daily soaps and stuff like that. The film is called 5th September. We'll talk about it, but how much is it a challenge for this show to appeal, you know, after so many years? Yes. As much as it did in those days. It's nearly 25 years. Important question, Vicky, because, you know, as I meet people from the industry, whether they're in front of the camera or they're behind the camera, I keep hearing that everything has changed, and we have to accept everything is a slow progression. Things change. But as of now, you must have realized, especially after COVID, whether it's the film industry around the globe, not only in India, or the film industry in India, or the television industry, the audiences have way more options. The audiences are divided even on the level of intellect and demograph. In fact, the demograph is based on ages, stages, intellects, people's personal preferences. So we just have to wait and see how audiences are going to react to the new Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. But I would like to believe, because it's been such an iconic show, that it has its own audiences around the globe. So basically people from the entire subcontinent would be looking forward to the new part of it, I suppose. Because if you see what is in the television right now, except for a few amazing shows like Anupama and stuff, what's really there? तो आपने इतनी तारीफ तो की शो की, लेकिन आपने वो शो छोड़ा क्यों? मतलब मुझे याद है कुछ 2-2.25 साल हो गए थे and you were about to leave it. Actually, सन 2001 से मेरे टेलीविज़न का करियर शुरू हुआ, और 2008 तक मैंने नॉन स्टॉप काम किया. यकीन मानिए मुझे वक्त भी नहीं मिलता था कि मैं देहरादून अपने घर जाऊं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूं. और
within a very short span of time, I was very blessed with a lot of work because my first show was Sansar, which was actually a weekly. It was directed by an amazing director, Partho Mitra, और मुझे खुशी है कि मेरे करियर की शुरुआत में मैंने इतने अच्छे इंसान और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया because somewhere he instilled the discipline of how to be an actor. तो और उसके बाद मुझे क्योंकि सास भी कभी बहू मिला, फिर इमीडिएटली एकता ने कुसुम, क्या हादसा क्या हकीकत, उसके बाद मैं कहानी घर घर की कर रही थी. तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ बोर्डम, बिकॉज मेरे ट्रैक करिश्मा विरानी के ट्रैक में मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद ट्रैक कहीं जा नहीं रहा था. एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि भाई जो बाहर डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे और प्रोडक्शंस के साथ, आपको पता है मैंने क्योंकि सास के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्शन के साथ काम किया है. तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली इच्छा होती है कि आप नए लोगों के साथ, नए स्क्रिप्ट्स में, नए कैरेक्टर्स में काम करें. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट. बट यार शो आप कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा आ रहा है जी. तो was it easy to take that decision? I mean, I know what you're saying in terms of repetition, it becomes a bit too much. जी. But पैसा आ रहा है, घर चल रहा है इतनी छोटी उम्र में. जी. आई डोंट वांट टू साउंड फ्लॉन्टिंग, लेकिन मेरे लिए पैसा कभी भी सर्वाइवल के अलावा कोई इतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं रही कि मैं अपने ज़िंदगी के हर डिसीजंस पैसे पे ही बेस्ड करूं. मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर पर्सनल प्रोफेशनल डिसीजंस जो लिए हैं, आई एम अ वेरी हार्ट सेंट्रिक पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बिकॉज जब मैं अपनी ज़िंदगी को वापस मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत सेंस ऑफ कंटेंटमेंट होती है जिन डिसीजंस को मैंने लिया उनको लेकर. तो मुझे और कोई ज़रूरी तो नहीं कि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्शन के साथ काम करूं. मैंने कितने, आई डिड जैसी कोई नहीं, आई डिड देवी विद देवगन प्रोडक्शंस, Jet Set Go with my dear friend Vipul Shah. I was paid well everywhere. So, yeah. What about working with Smriti Irani? It's not something that I cherish very much in my life. I'm sure others have different opinions. But, yeah, for me it was okay. क्यों? क्या हुआ था? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप और मैं अलग अलग विचारधारा के हैं किसी भी चीज़ को लेके, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लड़ लेंगे. लेट्स से यू एंड आई आर इन द ग्रीन रूम getting our makeups done, doing our own things, and you're getting into politics and you have a different opinion than I do, it doesn't mean that you and I should have a fight about it. So I think she and I had different viewpoints on politics. And because she was such a senior actor, she thought she could tell me to leave the room. And she did. And I told her to leave it if she wanted to. And after that, it became very unpleasant for me to continue working in that show. And so this also was one of the compounding reasons I wanted to leave the show. I thought I was not enjoying it. तो ये फाइट मतलब जो ग्रीन रूम में हुई थी? जी, बिकॉज उनकी मेरी आइडियोलॉजी अलग है ना. विकी, आप मुझे एक बात बताएं. You've seen her political career and now she's coming back. Usually political careers progress and somewhere coming back, leaving the political career and coming back into television. किसी भी इंसान को जब परमात्मा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे इतना पावर, जिससे आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं. Do you think I depict a normal Indian woman? I don't. My life is so far removed from a normal Indian woman's life. अगर आप यही बम्बई से 4 घंटे आउटर पे निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग, लेडीज पानी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. तो आई फील इतना बड़ा जो उन्हें प्लेटफॉर्म मिला, इट शुड नॉट बी a self-centered, ego-driven trip. It could have been used to empower children, to empower women, to be that voice that we all wanted to be proud of. I didn't see that happen. Did you follow her political career? Well, I don't really follow anybody's political career, but we live in the world and we are into social media, so we know that what's going on. And I feel that her own story, from humility to who she's become and what she's accomplished in terms of whatever political clout, I feel that's a platform that was beautiful to be used to empower people. How many women we have anyways in Indian politics? So if you're one of them, make most of it, yaar. That's what I think. Were you surprised when she beat Rahul Gandhi in Amethi? I don't get surprised by anything in politics. I was
not at all surprised even when she got beaten by the gentleman Kishori Lal ji. So I wasn't surprised at all, because end of the day, in a democracy, if it's running in a genuine way, people have made their choices. So this is what I feel, and I'm sure that must be a reason she's decided to quit or whatever and do whatever she's doing now. But she's saying she's continuing in politics. Well, then good for her. She can be in front of the camera here and be in parliament there and do whatever she wants to do. Going back to the fight, Kiran, exactly क्या हुआ था? कोई आया रूम में, आप लोग को बोला बस करो? नहीं, ऐसा कुछ इतना. And eventually who left the room? Because you told her that you can leave. Yeah. You told me that. It's a very, very long time back, but all I remember is that we were in the green room, and we had different political opinions, and I think she got very, I don't know, pumped up about it. Like if you and I are talking about it, about politics, you don't see me getting pumped up and taking it all personally, but I'm sure she had herself invested in politics back then as she is now. So we had different opinions, and I didn't expect, but then that's where civilization, I said, now we've just learned, we have to learn to be civil towards each other by accepting each other's opinions. They could be diverse. तो उसके बाद आप लोग की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई? जी, उसके बाद तो मैंने कुछ समय के बाद मेरी शादी हो गई थी उस शो में. I left the show and I've never really looked back, because I went abroad, I was studying. हाँ, but जो भी दिन सेट पर गए, yeah, I was just in my own self and with my own little group, and I've always been very focused in my work. I want to go do my work, come back home. That kind of a person. Hypothetical question, if you meet her today, yeah, if you bump into her somewhere, yeah, will you speak to her? Will you exchange pleasantries? I was invited to, so my friend Raj Deshmukh, they do some wonderful, genuine, grassroots level social work back in Pune. He invited me for this event, which apparently wanted 100 most powerful women in Pune. I was invited as one of them, and I was told that Smriti Irani ji is there and she's the main speaker. And I just went there. I told Raj, I said, look, I'm just coming for you because this is your event. And while she was talking, I left, because I'm not interested in listening to anybody's story about I came from such humility and look at where I am today. Well, what are you doing with what you've got? That's really what I think. Everybody has a humble story. So many people in the world have come from nowhere and really made it for themselves. But eventually, जीवन की सार्थकता कहाँ पर है? Is in my own existence. What do I bring to the table? What do I bring to the table for someone who can do nothing for me? ये कब की बात है? I think this was, I don't know, post-COVID maybe. So she was invited into some function. स्मृति ने देखा कि आप वहाँ आई हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं, वो स्टेज पे थी, वो सबको देख रही थी, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी. But I'm sure she saw me leave, because I was the only person who left in the middle of all that conversation. Ekta Kapoor, who was heading the show then and even is heading the show now, was quite upset when you said that I want to leave. With my due respect to Ekta, I can totally understand as a producer. But उसके बाद भी मैंने उनके साथ काम किया, because कहानी घर घर की happened after क्योंकि सास भी कभी बहू थी. उसके दौरान भी मुझे एक शो ऑफर हुआ था, किस देश में है मेरा दिल, लेकिन उस वक्त मैं एक इंडो पाक प्रोजेक्ट मलेशिया में शूट कर रही थी. कुसुम भी किया आपने? जी, मैंने एकता के साथ कुसुम भी किया. क्या हादसा क्या हकीकत भी दो किए हैं. उस टाइम जब वो गुस्सा हो गई थी, क्योंकि एकता का बोलते हैं कि एक बार गुस्सा हो जाए तो वो इतना पीरियड इजी नहीं होता है जी, तो वो आपने कैसे सल्टाया, मतलब that whole turbulence? Yeah, it was turbulent. It was not easy. I was a young person and I was working with the biggest producer of India, और उनका नाराज होना. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे जीवन के जो भी मैंने डिसीजंस लिए, वो कभी भी पैसे की प्राथमिकता उनमें नहीं थी. मुझे ऐसा लगा कि जहाँ मुझे अपने लिए खड़े होना है, वो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने लिए खड़ी हूँ. If I won't, then who will, right? तो आपने उनको टेक्स्ट भेजा, मैसेज भेजा कुछ? जी, मेरी एक्चुअली शोभा मैम ने मुझे ऑफिस में बुलाया था और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की थी, और उन्होंने मुझे बताया कि कई बार ऐसा होता है कि शूटिंग उस वक्त आपको पता है कि कितने सारे शोज चल रहे थे और कितना प्रेशर होता था शूटिंग कॉन्स्टेंटली करने का. जो चीज़ हम आज शूट कर रहे हैं वो शायद परसों एयर हो जानी थी.
तो उन्होंने बताया कि समटाइम्स पीपल टू सेव देयर ओन सेल्व्स, जो एकता तक मैसेजेस पहुंचते थे वो शायद सही नहीं होते थे। लेकिन मैं इस लेवल पे एकता को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि जब उनको पता लगा कि कहीं पे मेरी कोई गलती नहीं थी, तो she was humble enough to even speak very politely to the level of apologizing, and immediately after that उन्होंने मुझे क्या आज सा क्या हकीकत दिया, मैंने कहानी घर घर की किया। She spoke to you, she wrote to you. No, she didn't actually, she and I had met in Siddhivinayak temple and we bumped into each other, and she told me that whatever was conveyed to her वो सही नहीं था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है because she is एकता कपूर, right? बट उस इंसान की ह्यूमिलिटी देखिए, बिकॉज मैं तो ईजिली रिप्लेसेबल हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरी जगह, मेरे पोजीशन, मेरे रोल्स को लेना चाहेंगे। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को, दैट शी ऑलवेज हैज़ गिवन मी वर्क। एंड मतलब कहानी घर घर का रोल आप देखिए, विद साक्षी तन्वर, मीता वशिष्ठ, अनूप सोनी, वो राजेश्वरी मेहरा का रोल इतना आइकॉनिक हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास होगा एज एन एक्टर, बिकॉज उस रोल के लिए हमें कितना स्टाइलाइज ग्रैंड ममाज ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। देवर मनीष मल्होत्रा साड़ीज एंड लुक वाज क्रिएटेड, सो या। क्या एक वजह ये भी थी कि आप उस वक्त शो के एक एक्टर के साथ, सुमित सचदेव के साथ रिश्ते में थी, और शायद वो रिश्ता थोड़ा बिखर रहा था उस वक्त, एंड यू जस्ट वांटेड टू यार अभी आसपास नहीं रहना है, थोड़ा आई वांट लिटिल क्लियर स्पेस, तो चलो ये शो अभी मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि सुमित बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इतने अच्छे इंसान से मिली एंड वी वर टुगेदर फॉर सम टाइम। मुझे लगता है सही समय पे मैंने वो शो छोड़ा, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद मैं देवी कर रही थी, अगेन साक्षी तन्वर एंड मुनीश बहल, अमन वर्मा, जूही परमार। आई वाज प्लेइंग वन ऑफ द लीड नेगेटिव्स। तो आपको एक्टर्स ने कहा होगा शो में कि आप पर्सनल लाइफ को क्यों मिस कर रहे हो गया, आप काम करते जाओ। एक्चुअली मेरे शो में दो सबसे प्यारे दोस्त हैं, अश्लेषा सावंत हु वाज प्लेइंग टीशा, और संदीप बसवाना, वो मेरे बड़े भाई की तरह से। Yeah, they were also dating. I think they are living in now together. Yeah, that's right. They are the loveliest couple I know. Yeah, very sweet. तो जी मेरी डेफिनेटली उनसे बात हुई थी, बट सबको पता है कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, और फिर मैं जो डिसीजन बना लेती हूँ तो बना लेती हूँ। तो इन्होंने बोला जरूर? डेफिनेटली इन्होंने बोला था कि थोड़ा सा और शो कर लो, हो सकता है तुम्हारा ट्रैक बदल जाए। लेकिन 2.5 साल में तुम्हारा माइंड बदल जाए, स्पेस क्लियर हो जाए। नहीं, माइंड तो बिल्कुल मेकअप था। तो ऐसा क्या हुआ किरण कि नहीं, रिश्ता खत्म करना है? एक्चुअली अब एक बहुत ही एक जनरल आंसर मत देना मुझे। जनरल आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त लगता है किसी भी रिलेशनशिप में लोगों को समझने के लिए, और लोग आपको समझें। कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगे कि हम सेम ट्रैक पे नहीं हैं, तो बहुत आगे जाने से अच्छा कि आप अपने ट्रैक्स बदल लें। वो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम अलग लोग हैं, डिफरेंट हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अलग अलग चीज़ें करना चाहते थे। जैसे मैं तब से विदेश जाके पढ़ना चाहती थी, और मेरा थोड़ा सा एक रिबेलियस नेचर भी है। वो एक बड़े प्यारे मेलो इंसान हैं, तो वो चाहते थे इंडिया में ही रहो, यहीं शादी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो चाहते थे इंडिया में मैं रहूं या ऐसा कुछ। बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि हम डिफरेंट इंसान हैं। और आपको 2.5 साल लगा समझने में? कम से कम 10 साल तो नहीं लगे। 20 साल भी लोगों को लग जाते हैं। लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, एंड देन दे डिसाइड, सो आई एम हैप्पी दैट। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि सुमित मेरे अच्छे दोस्त हैं, और आप लोग टच में हो। साल में एक बार मैं ज़रूर उनको उनके बर्थडे पे विश करती हूँ, मुझे ज़रूर बर्थडे पे विश करते हैं। दैट्स हाउ वी आर इन टच। लेकिन आपने शादी नहीं की? जी, मैंने शादी का लड्डू नहीं खाया। क्यों? क्या सुमित को आप बुला नहीं पाई या कोई और रीज़न था? नहीं, एक्चुअली एक तो ये कि समहाउ मैं वो इंसान नहीं हूँ जो शादी को एज अ इंस्टीट्यूशन बहुत प्राथमिकता दे सकती हूँ।
बिकॉज इस दुनिया में कोई भी शादी होती है तो उसके 3 एंगल्स होते हैं। एक तो कहीं ना कहीं रिलीजन इन्वॉल्व है, भाई आप परमात्मा के सामने साक्षी रख के किसी से शादी करते हैं। अब तो लॉ भी इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है। सो द वे आई बीन ब्रॉट अप, बिकॉज माई फादर इज़ अ वेरी लिबरल मैन। और आप समझ सकते हैं कि आज के समय में जब हम देखते हैं डिवोर्सेस कितने मेसी हो जाते हैं, कितनी पीपल वॉश देयर लॉन्ड्रीज इन पब्लिक, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि आई कैन ओनली थिंक of really being with someone, I have to really respect that person first of all. Like तो हम बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं ना, बहुत सारे लोग हमें लाइक कर सकते हैं, उससे क्या होगा। विकी, मुझे लगता है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के जिस मुकाम में हूँ, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर रही हूँ कि मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरे रिसोर्सेज मैं पर्सनली प्रोफेशनली वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि इट्स वर्थ वाइल। और मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला अभी तक जो मुझे लगे कि इट्स वर्थ वाइल। सो मुझे लगता नहीं कि इस जन्म में मैं वो लड्डू खाने वाली हूँ। आप रिबेलियस थी। जी, मैं अभी भी हूँ रिबेलियस, तो मैं हमेशा ही रहूंगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके डैड आपको when you were barely 16 or 17, 18, yeah. ओशो ले गए थे। जी 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 ओशो आश्रम में। जी। What happens there? I mean, how does he introduce you to that new world? So basically, and why does he take you there? Coming to that, in the 80s उन्होंने डिसाइड किया कि गोरखपुर से देहरादून आना है, ताकि आपको पता है देहरादून some of the finest schools in India, बच्चों को पढ़ाने के लिए आए वो यहाँ पर लेके। और वो बहुत शौकीन आदमी हैं, उन्होंने एक बड़ा फार्म लिया क्योंकि वो फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, तो हमेशा घर पे हमारी गाय रहती थी। फिर हम जब बड़े हुए तो घोड़े भी थे हमारे घर पे, हंटर डॉग्स थे, तो घर भी था, एक तरह का फार्म भी था। ही इज़ इनटू रियल एस्टेट, हमारा फैमिली बिजनेस है रियल एस्टेट। और आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट बिकॉज ही इज़ माई फादर। उस इंसान ने इतने ग्रेस और डिग्निटी के साथ अपना बिजनेस कंडक्ट किया है, उसे किसी के पद से, किसी के कद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे फादर ने कभी किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट को एंटरटेन किया हो ताकि उनका काम चले। ही इज़ डेल्ट विद द जेंट्री ऑफ इंडिया, वेदर इज जनरल्स एंड all the top people from the Navy, great civilians and stuff like that. कहीं ना कहीं वो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब किया है। और वो एक इंटेलेक्ट हैं, वो इंटेलेक्चुअल इंसान है, वो किताबें पढ़ते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन से लेके हर तरह के वो किताबें पढ़ते हैं। तो एक वक्त ऐसा था when ओशो left his body in 91, ओशो के कुछ सन्यासी देहरादून आए थे जिनको मेरे फादर ने मदद की थी, क्योंकि आपको पता ही है ओशो हमेशा हर समाज में कितने उपेक्षित रहे हैं एज द गुरु, यू नो। तो यू कैन इमेजिन बैक देन इन देहरादून दे वर नॉट पीपल हु वांटेड टू रेंट आउट देयर प्रॉपर्टीज टू देम। तो मेरे फादर ने उनकी बहुत मदद की और मैं कभी कभी उन लोगों के पास जाती थी मेडिटेशन के लिए, वो मुझे बुलाते थे। मैं उस वक्त 14 या 15 की होंगी और मैंने ओशो की पहली किताब पढ़ी, लाइफ लव लाफ्टर। अब आप समझ सकते हैं कि एक 14 साल का कि एक यंग एडल्ट ही कहेंगे, क्या प्रोसेस कर सकते हो आप, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओशो से मेरे जन्मांतर का प्यार है, बिकॉज जैसे आप कोई रेडियो सुन रहे होते हैं और करेक्ट बैंड लगाते ही म्यूज़िक बजने लगता है, द मोमेंट मैंने वो किताब पढ़ी आई फेल्ट इट पियर्स माई हार्ट। और ओवरनाइट विकी मेरे कमरे से सारी फैंसी चीज़ें, बाबी डॉल्स हट के ओशो की किताबें आने लगी। माई एल्डेस्ट ब्रदर मधुर, ही वॉज ऑलरेडी एन ओशो सन्यासी, और पापा ने कहा कि ये दुनिया देखनी बहुत ज़रूरी है। सो मेरे लिए एज ए यंग पर्सन 17-18 साल के एज में वो दुनिया देखना, वो विटनेस करना, एक ऐसी जगह उन्होंने ईजाद की जहाँ पे लोग ट्रूली ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट वॉज एन आई ओपनर। एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग बात यह है विकी, ओशो की बात मुझे हमेशा याद रही, उन्होंने कहा था नंगा नहाए निचोड़ूं क्या। मुझे इतनी अवेयरनेस थी उस एज में भी कि मेरे पास कुछ संन्यास्त के लिए है नहीं, पहले मैं दुनिया में जाऊं, अपने आप को दुनिया के थ्रू एक्सप्लोर करूं, फिर तो मेरे पास कुछ होगा ना कि मैं कह सकती हूँ कि मैंने कहीं त्याग किया है। सो आई एक्सपीरियंस्ड ओशो कम्यून एंड आई केम टू बॉम्बे। अब सवाल ये है कि ओशो आश्रम में आप यंग एज में जाते हैं जी। अब मुझे तो इतनी आइडिया नहीं है फ्रैंकली ओशो आश्रम की, बट जहाँ तक मुझे याद है, जब when we were growing up, the elders in our family always said that Osho ashram, Osho environment, Osho people practice free जी।
and there is promiscuity. जी. And I don't know. I mean, even I remember those days. Vinod Khanna had जी. joined, and he had left his wife. He was and Osho's gardener. Yeah. he had left his wife, and he had left his children. Right. So it was a very, a little disturbing image, you know. जी, बिल्कुल. In front of our eyes. आज भी वो disturbing image है विकी, और So- absolutely right, और पूरी दुनिया में है वो image. So what did you see there? अव्वल तो ये कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने भी ये सारी बातें सुनी थी. विकी, आपने मुझसे 2 सवाल पूछे. लेट मी एड्रेस द फर्स्ट वन. यू सेड कि वहाँ पे इस तरह से सुना जाता है कि एक बड़ा फ्री का एनवायरनमेंट है. आई डोंट इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री. Like, are you expecting that you'll enter Osho commune and all you'll see is people doing whatever they're doing? मैंने कम से कम ऐसा कुछ देखा नहीं, विटनेस किया, और मुझे लगता है कि आपके बम्बई में तो ये माहौल बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट बम्बई के लोगों को हक ही नहीं है ये पूछने का. Let's please understand one thing. Is a part of human nature, animal nature. We are animalistic, we are primal, we are primates. And अगर ओशो ने कुछ किया तो जो इतना रिप्रेशन है उसके खिलाफ बोला. आप ये सोचें कि अगर वो इंसान चाहता तो खुश करके सबको अपने साथ मिला के दुनिया पे राज करते, लेकिन वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने शायद सुकरात के बाद, और ऑफ कोर्स लोग रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे उन्होंने सारे रिलीजन्स की पोलें खोली हैं और इंसान को ये बताया है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड. It's not an egocentric statement. It is witnessing the essence of God within ourselves. अगर उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, क्या गलत कह दिया? आज सब लोग कहते हैं I am in goddess energy, I am in God energy, right? But इसमें फर्क है, किरण. I am जी. God and I am God का energy जी. are two different statements. Aham Brahmasmi is I am God. If he said I am God, what is wrong with it? Please tell me that. But We are godliness. God तो कहते हैं ना कि is What is God? You think God is somebody sitting up in the sky? yeah, whom we have not seen. Whom we have not seen. I would like to believe that godliness is the energy within us, जिसे हम आत्मा कहते हैं. That is godliness. In terms of physics, what is this world made up of? There's matter, there's dimension of time and space, right? We have all that inside of us. We are the space within. We are that ocean. When the drop meets the ocean, it is the ocean, right? So इसीलिए कहते हैं ना, जब आपकी आत्मा परमात्मा के साथ मिलेगी, what is परमात्मा? It's not some God sitting up in the sky looking at what you're doing and what you're doing wrong, right, or what you're doing wrong. It is absolute pure energy of consciousness. It is awareness. हाँ, as human beings मैं समझ सकती हूँ कि we understand symbolism. We understand कि शिव जी ऐसे दिखते थे, उनके ये attributes हैं, हनुमान जी के ऐसे attributes हैं. तो for our common understanding, we need those kind of language and those kind of images to understand. Otherwise, as far as I'm concerned, God is pure energy. Second question जो आपने कहा था कि विनोद खन्ना जी अपने परिवार को छोड़ के आए. ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें. आप किसी भी लेवल पे जो आपके जीवन की प्राथमिकता हैं उनको आप छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में आए. वैसे वो बहुत सारी बातें बोलते थे, खुद को भी कॉन्ट्रडिक्ट करते थे. इनफैक्ट इसी सवाल पे उन्होंने जवाब दिया था कि गुरु नानक देव जी वो हल भी चलाते थे, गुरबानी भी गाते थे, मक्का मदीना तक वो पैदल गए थे, और वो एक पारिवारिक इंसान थे. आप मुझे बताइए उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी विकी, आपके ख्याल से व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर, इट्स जस्ट अ रिटोरिक. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप भगौड़े की तरह से जीवन से भाग जाएं. मैं तो ये सोचती हूँ, जो मैंने ओशो से सीखा है, कि स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब है कि बिल्कुल आप 100% जीवन में इन्वॉल्व हो जाएं. जो लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं आप उनमें घुस जाएं, आप उनको 100% जिएं.
चाहे आपका प्रेम है, चाहे आपका ब्रेकअप है, चाहे आपका परिवार है, पारिवारिक समस्याएं हैं, और ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ एज समवन हु हैज लिव्ड इट। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये करने की या वो करने की। अगर मेरी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, मैं उसे कैसे नजर, हाउ कैन आई इग्नोर इट, राइट? समवेयर देयर इज अ कॉलिंग। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने फैमिली में, I don't see many Indian girls going out of their way because they are married, they have their own setups. But I have been involved in my family because मुझे लगता है शायद मेरा किसी जन्म का प्रारब्ध है, तो मैं उससे क्यों भागूं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हर लेवल पे अपना बेस्ट किया है फॉर पीपल दैट आई लाइक, फॉर पीपल दैट आई लव, द पीपल आई केयर अबाउट। वो सेटिस्फैक्शन मेरी ज़िंदगी का विन विन सिचुएशन है। तो अगर आप वहाँ जाकर रहे, मैं तो हमेशा ओशो आश्रम आती जाती हूँ, रहे नहीं फॉर अ लॉन्ग पीरियड लाइक विनोद खन्ना डिड। मैं 2015 में तो ये मान के चलिए कि 80% ओशो कम्यून में ही थी। इनफैक्ट मैं मरून कपड़ों में ही थी। मैंने आई वाज गोइंग थ्रू अ पर्सनल ट्रेजेडी, तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में मैं बहुत वक्त वहाँ पे गुजारती थी, और मैंने बहुत सारे मेडिटेशन थेरेपीज़ की, प्रोसेसेस किए, ताकि मैं जिन चीज़ों से गुजर रही थी उनसे निकल पाऊँ। And that was a very humbling experience for me. और वो personal tragedies, if I'm not wrong, when one of your brothers, the elder one, had passed away. It actually happened a few years ago. It happened in 2013 that his car collapsed in a river in Uttarkashi. He had gone to see some land and also to meet his best friend, Rajesh Rana, who is an elder brother in my life now. And मतलब ऐसी चीज़ें तो आप हमेशा सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों में देखते हैं और आप फिल्मों में देखते हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि माय ब्रदर्स कार वाज मिसिंग, तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है कहीं फॉरेस्ट में चला गया हो। ही आल्सो हैड एन एम्प्लॉय विद हिम, एंड देन आई वाज टोल्ड कि नहीं, दैट रोड हैज कोलैप्स्ड, एंड देन माय अदर ब्रदर and his best friend again from Pune, Mr. Mate, went to look for him, and all we found was the parts of his car. तो उस reality के साथ जीना बहुत मुश्किल था। आई थिंक 7 साल तो मुझे लग गए विकी वो उस दौर से निकलने में। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम हिज डॉटर वाज ओनली 10 years old, और आप समझ सकते हैं वो सिंगल पेरेंट थे। तो सडनली उनका चले जाना, प्लस वो देहरादून में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो एक ही साथ। और मैं उस वक्त लंदन में एक्चुअली रह रही थी, मैं शिफ्ट ही होने वाली थी। फिर इतना कुछ हो गया तो आई मूव बैक टू इंडिया, स्पेशली फॉर माई नीस, बिकॉज वो छोटी थी उस वक्त। और वो आज आपके साथ रहती है। जी। उनका पूरा एजुकेशन, उनका पूरी लाइफ आप ही देख रही हैं। जी, वो लाइक यू आर एज गुड एज अ मदर टुडे। वेल, मैं हमेशा उसकी बुआ हूँ, और मैं एक मदर फिगर उसके जीवन में हमेशा रहूँगी। मैं उसको कहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदर फिगर भी हूँ, फादर फिगर भी हूँ, बिकॉज मैं उसके पापा की बहन हूँ। तो वी हैव अ ब्यूटिफुल बॉन्ड, एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि वो एक बहुत ही प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सेंसिटिव, इनफैक्ट वो मेरी एडवाइज़र है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है ना, इनकी अपनी एक ब्यूटी है, क्योंकि इतने कम एज से दे आर सो एक्सपोज टू द ट्रूथ एंड द रियलिटी, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इज वेल। सो ये कहीं ना कहीं इनका एक अपना इनर कंपस और एक विजडम है इनका। सो अगर मुझे कोई सिचुएशन होती है तो मैं उससे शेयर करती हूँ। शी इज़ माई बेस्ट एडवाइजर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई ऑल्सो हैव अनदर डॉटर। अगर उसको मेंशन नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। और ये कौन है? I have a cat. Okay. She's the love of my life. जी, so I have quite a full life, you can see. So, is now being with your niece the first priority, I guess, and therefore now you decided that चलो यार जाने दो, अब शादी नहीं करनी है। ऐसा मेरे जीवन में कोई, मैंने कभी सच में ऐसा खास करके ऐसा बैठ के सोचा नहीं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। I am open and available to life in general. You know, I'm available for beautiful things to happen to me. So if I ever meet someone who I feel is incredible and we're on the same page, I will tell you about it, Vicky. And you never know, one of those days happen when I contradict myself and have a laddu. Just kidding. But yeah, so ऐसा कुछ मेरा conscious decision नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी, there's been a lot of responsibilities on me. तो मैं कभी अपने जीवन को बहुत ज़्यादा कुछ सालों में प्राथमिकता तो नहीं दे पाई। अब now that my niece is 22 and you know my brothers are better, so I can now think much for myself. Is this playing on your mind
जी that if you get married, जी. the guy may not be able to accept Oh, I think Your- those days are gone. your niece. If I were to be with anybody, he would integrate beautifully in my family. वो मेरे लिए important है हमेशा. Because मेरी niece हमेशा मेरे life में सबसे important रहेगी मेरे जीवन के अंत तक. Because I'm all she has. Of course, my family is there, my parents are there, लेकिन मैं एक मेन पेरेंट फिगर हूँ उसके लाइफ में. और मुझे ऐसा लगता है विकी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं. यू नो, लव अपने आप में, लव इज अ वास्ट थिंग. इट अकोमोडेट्स एवरीबॉडी. What does she plan to become? क्या बनना है? मैंने हमेशा उसे एक ही चीज़ बोली है कि बेटा ज़िंदगी में सबसे पहले खुश रहो. बिकॉज फ्रॉम अ वेरी यंग एज शी इज समबडी हु सीन एंड विटनेस्ड अ लॉट. और आई एम जस्ट नॉट वन ऑफ दोज पेरेंट्स की पढ़ाई में आपको नंबर 1 होना है और इसमें नंबर 1 और उसमें नंबर 1. डिस्पाइट ऑफ दैट शी इज़ अ डिस्टिंक्शन किड. She's been in the newspapers in Dehradun because she topped Dehradun when she was in class 12th. Now she is doing MBA. She did her graduation in English literature. So she wanted to take some time and she wanted to decide कि वो क्या करना चाहती है. तो she's still thinking. उसको marketing बहुत पसंद है. So at the moment she's doing internship with a social media marketing team. Very good company. And मेरे लिए सबसे important है कि वो healthy रहे, वो खुश रहे, उसका जीवन बहुत अच्छा हो. 2 chapters आपके लाइफ में. जी, मेरे लाइफ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं. हाँ, लेकिन 2 बहुत ही मतलब they were the, I guess, the darkest chapters of your life. जी. And one is your elder brother, Middle brother, yeah. elder to you. Yes. And I'm the youngest. Yeah. And the other one also. Yeah. Two brothers. Yeah. Yeah. Both brothers. You had 3 brothers, you lost one. Yeah. That was terrible. Yeah. You couldn't recover for 7-8 years, you told Yeah. me. And then the other 2 Yeah. were, if I can use the word, alcohol addicts. Yeah. You've done quite a research, huh, Vicky? काम है और कुछ नहीं. जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो दौर था, जी. जो वो समझ ही नहीं रहे थे, आप लोग समझा रहे थे और वो अल्कोहल लिए जा रहे थे. ऑब्वियसली उनका वर्क सफ़र हुआ होगा, उनका बॉडी बैलेंस सफ़र हुआ होगा. ये आप लोग ने, आपने और आपकी फैमिली ने कैसे टाइड ओवर किया ये क्राइसिस? कैसे झेला? कैसे झेला? Yes, yes. You're I trying think to we be should- very polite. No, I'm not trying to be polite. I was struggling for the word. We should Word. exchange the seats. Yes. Yeah. I have a larger perspective on this, and the larger perspective is हर इंसान किसी न किसी लेवल पे एडिक्ट है, किसी न किसी लेवल पे स्ट्रगल करता है. मुझे लगता है एडिक्शन की सबसे ट्रैजिक बात विकी ये नहीं है कि वो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसका परिवार उससे दूर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी, उसके सपने, उसका करियर सब ख़त्म हो जाते हैं. एडिक्शन की मेरे ख्याल से सबसे ट्रैजिक बात ये है कि एक इंसान की डिग्निटी ख़त्म हो जाती है, उसकी अपनी आँखों में, समाज में. और एडिक्ट्स मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे ज़्यादा उपेक्षित लोग हैं समाज में. उनको जज करना बहुत आसान है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर किसी इंसान को आदत है कि वो चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हैं, उस 2 चम्मच से आधी में आने में ही कितने महीने लग जाते हैं. अब आप ये सोचिए, जो इम्पैक्ट किसी भी तरह के जो नशीले पदार्थ हैं उनका हमारे साइकी पे, ब्रेन केमिकल्स पे, फिजिकल केमिस्ट्री पे, हमारी बीइंग पे, हमारी आत्मा पे होता है, इट इज़ एब्सोल्युटली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. तो एक वक्त मेरा भी ये पर्सपेक्टिव था, हाउ कैन दे बी लाइक दिस, हाउ कैन दे नॉट हैव कंपैशन. It took me a long time to understand. आप मुझे दोनों की कहानी विस्तार से बताइए. My eldest brother, I'm very happy to say that he's in recovery now. He's just celebrated his first birthday. और देहरादून में आपको पता होगा फर्स्ट बर्थडे माइनस अल्कोहल. माइनस अल्कोहल, जो किसी भी एडिक्ट के लिए ड्रग्स और माइनस अल्कोहल एक बहुत बड़ी बात होती है. आई एम एसोसिएटेड टू निजात, विच इज़ अ फाउंडेशन जो देहरादून में सिर्फ एक जगह मैं मानती हूँ पूरे देश में जो जेन्युइनली ग्रास रूट लेवल पे एडिक्शन समझता है. इट्स रन बाय सौरभ मल्होत्रा और एडिक्ट्स की मदद करता है थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, द 12 स्टेप प्रोग्राम, अल्कोहलिक एनोनिमस एंड द मीटिंग्स ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस. तो
My eldest brother, again, I'm not saying because he's my brother, very intelligent, very beautiful, very kind, बहुत sensitive इंसान. और बचपन से पापा ने बहुत लाड प्यार से उसे बड़ा किया, वो सबसे बड़ा था. एंड आई थिंक शायद कहीं कुछ मिस रह गया होगा. ऐसा नहीं कि फ्रॉम द टाइम ही वॉज वेरी यंग वो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लार्जर पिक्चर ये भी है कि भाई हर इंसान का कुछ तो प्रारब्ध होगा. माई फादर हार्डली एवर ड्रिंक्स. हाँ, तो कैसे आदत लगी, किसके घर गए वो, ऐसे कौन से फ्रेंड्स थे जो फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए? जी जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे क्या मेरे भाइयों को बिगाड़ेंगे. ये खुद एक बड़े ये जानना बहुत इंडिपेंडेंट जरूरी है, थॉट बिकॉज दिस प्रोसेस. विल बी एन आई ओपनर कि जो आप रूट कॉज को अगर जी, उस पे ड्वेल करेंगे, कहाँ से जी. शुरू हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जीवन में जब हम किसी को लाड प्यार करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कई बार बैकफायर करती हैं. सो ये पूरा एक जो प्रोसेस रहा, देखिए कोई भी माँ बाप होते हैं, हर माँ बाप अपने लेवल पे चाहता है कि मेरे बच्चे दुनिया के दुख तकलीफ़ों से दूर रहें, मेरे बच्चे अच्छी क्वालिटीज़ इम्बाइब करें. और माँ बाप भी तो ये समझना होगा ना कि कोई ट्रेनिंग लेके तो आते नहीं है, हाउ टू बी अ मॉम, हाउ टू बी अ डैड, यू नो. तो आपके माँ बाप ने उसको इतना प्यार किया कि वो बिगड़ गया. मेरे फादर स्पेशली एक बहुत ही लविंग इंसान है. लेकिन रूट कॉज क्या था? मेरे ख्याल से वो जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं. जी, रूट कॉज यही हो सकता है. प्यार थोड़ी बॉटल पैदा कर देगा टेबल पे. नहीं, प्यार देखिए बॉटल बिल्कुल पैदा नहीं करता है, बट ये होता है कि लाड जो होता है, देखिए प्रेम एक अलग चीज़ है, मोह अलग चीज़ है. किसी को बहुत ज़्यादा लाड करना या लाड में एक सही टाइम पे जो एक करेक्ट गाइडेंस, स्ट्रिक्टनेस के साथ, आप ये कह सकते हैं मेरे फादर एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है. नहीं, लाड भी विल नॉट ब्रिंग द बर्थ ऑफ अ एब्सोल्युटली इट विल. यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम एक अलग चीज़ होती है. और आज जब मैं अपनी नीस को, मैंने काफ़ी प्रेम से भी उसे बड़ा किया है, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्टनेस से भी बड़ा किया है. बिकॉज जिस समाज में हम रहते हैं, देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, everything is available on a phone call in their circles. So as parents we have to be extremely guarded. दूसरे भाई के साथ क्या हुआ? He was never too much into studies. वैसे भी बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई के बहुत पीछे पड़ते हैं. तो कहीं ना कहीं जब वो पढ़ाई का समय था, ज़्यादातर वो पापा के साथ बिजनेस में इधर ट्रैवल, ये ट्रैवल, वो ट्रैवल, उस तरह की चीज़ें. और उसकी जो दोस्ती थी वो अपने से बड़े एज के लोगों के साथ काफ़ी दोस्ती थी उसकी. एंड वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बड़ा जो ग्रैंडियोसिटी वहाँ पे होती है, तो आई फील समवेयर वो लाइफस्टाइल ऐसी बनती गई. और जब तक ये चीज़ें उन लोगों ने रियलाइज़ की, तब तक बहुत सारी चीज़ें बहुत देर भी हो चुकी थी. बट आई एम हैप्पी नाउ दैट दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. अच्छा, इन्होंने भी छोड़ दिया है? जी. और ये अभी इनका फर्स्ट बर्थडे हो गया माइनस अल्कोहल? अभी होगा. अच्छा, दोनों भाई के अल्कोहलिज्म की वजह से कभी घर पर ऐसा कुछ मतलब बहुत टफ टाइम आया दैट दे गॉट वायलेंट, एग्रेसिव? एनीबडी हु इज डीलिंग विद एनी एडिक्शन, कभी भी माहौल तो अच्छा नहीं रह सकता. बड़ा ही एक डिप्रेसिंग माहौल. और सबसे ज़िंदगी में मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट होता है कि जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, यू सी देम suffering and you feel that you as an individual are failing at the heart of your existence because it's very personal. ये चीज़ें हम फिल्मों में देख सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी खुद की कहानी किसी फिल्म से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, in a very damp light, it's very hard to deal with that. Did it come to a head where they needed some drastic measures like rehab? Oh, absolutely. Both of them? Absolutely. Let's take you back to that serial which, I was working in Mumbai Mirror Ji. when you opted out of Hari Mirch. Yeah. And one of my colleagues, Sapna Pujari, had written that story Ji. as a breaking story that Ji. Kiran Dubey leaves the show. Yeah. The producer Rakesh Chaudhary had said she's difficult. Yeah. She is not up to the mark. वो क्या था उस वक्त? So as you know,
I don't have to say it. The reason You didn't say anything that time. I didn't say anything because it was not important to say anything. For example, why am I in your show? You've seen the trajectory of my work from doing the topmost shows in India. और आपको विकी ये तो मैंने बताया नहीं कि जितना काम मैंने हाँ कहा है उससे बहुत ज़्यादा काम तो मैंने ना कहा है और आज भी कहती हूँ, चाहे वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज हों या कुछ भी, लाइक यू नो. और ये जो भी शो था, whatever मिर्च, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज इफ यू सी टेलीविजन ही सही, बट माई एंटायर वर्क प्रोफाइल इज A grade. And this was some show on, I don't know, DD or something, and they cast me for it. And definitely I should have said no, because it was a slapstick comedy and it's not my thing. So मैंने उनको उसी दिन बता दिया कि I'm sorry, it's not my thing, because I'm a subtle performer. Even if you see my negative scenes, it's more of camera and less of me. वो भी मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ. मैं डायरेक्टर को कहती थी कि please, I cannot do over the top, but they said the audiences love you like that. So I feel कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, 90% लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ, you can see, जिसके साथ भी मैंने काम किया मैंने फिर रिपीट किया है. Almost every producer that I've worked with, director I've worked with, I've repeatedly worked with them again. So कहीं एक incident अगर कुछ ऐसा होता है तो I don't think it's that a big deal. But eventually they paid me, so that's okay. आप श्लेषा के टच में हो, जी, संदीप के टच में हो, जी, सुमित साल में एक बार. जी, बिल्कुल. What about Akashdeep Sehgal? He is also your very close friend. He is a very And dear where is friend. he? Akash is a very dear friend of mine, very beautiful, very intelligent person, talented person. कई सालों तक तो मैं उनके टच में नहीं थी, बट अभी बीच में न्यू ईयर के आसपास मुझे उनका मैसेज आया था, मुझे उनका फ़ोन आया था. बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में उनका एक फार्म हाउस है, कभी वो वहाँ रहते हैं, कभी अपने बॉम्बे वाले बंगलों में रहते हैं. तो आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम हिम, एंड ही इज समवन हु विल ऑलवेज बी वेरी डियर टू मी. I remember meeting him at Linking Road. How was your McDonald's. experience meeting him? Very funny, unforgettable. I was waiting for him at 8:15, he had said. He came by 8:16, 17. He was in time. He just came zoom in a very open Jeep, red colored. Yeah. And That's Akash. Maybe the color, I'm not very sure. Yeah. But stopped it in the middle of Linking Road, right opposite McDonald. Right. And just got down from the car and piche Did he ki jam the traffic. traffic? Yes. Okay. That's And then he Akash. started talking to me. I said, आप जरा गाड़ी तो साइड जी. वो होते रहेगा. बोल क्या करना है, कहाँ बैठना है, अंदर बैठना है, बाहर बैठना है, किधर और बैठना है. Yeah. Very talented person, and I wish वो एक comeback करें अपनी ज़िंदगी में और on screen, because आपको पता है कि on screen उनकी presence कितनी थी और उनकी फैन फॉलोइंग कितनी क्रेजी थी. आई रिमेंबर आकाश के साथ आप कभी पेट्रोल पंप में भी रुक जाते थे तो पीपल यूज्ड टू गो क्रेजी. ओ माय गॉड, ही वाज प्लेइंग द अंश कैरेक्टर इन क्योंकि सास भी कभी बहू थी. वही तो हाईलाइट थी ना शो की, Absolutely. that Smriti shoots him down Yeah. and he plays Tulsi's son. Right. I remember I had broken that story first and nobody believed it when I told my Telechakar people, Yeah. where I was a correspondent in those days, 2005 or 2006 it was, and they were very unsure that they should carry it. I said no, carry it, and that story became so popular. It was iconic. That when Telechakar ने जब awards किए, जी. उस टाइम शायद फर्स्ट या सेकंड था, तो एक बड़ा सा पोस्टर उन्होंने होर्डिंग बनवाया था वो स्टोरी का, Tulsi shoots Ansh. Yeah. And it was such a proud moment for me. Yeah. You have yourself been quite a path breaker. You've had the courage of asking people very genuine, honest questions. And congratulations to you for that. But क्योंकि considering हमारी industry आज इतनी sugar coated रहती है और सारे रिश्ते इतने sugar coated रहते हैं, तो it must take courage to be yourself. It's not easy. It's not easy, I'm sure. It's not easy, but I'm still proud of it. Is it worthwhile? It is. How we switched the tables. It is. Without exchanging seats. Cheers rather. It is. Yeah, It is fine. It's absolutely fine. It has been my journey Yeah. always so. जी. Even when I was working in leading publications like Midday, जी, बिल्कुल. Mumbai Mirror. I remember meeting you back then, and you were always
being talked about as someone who's always trying to get the truth out and in your own very fearless way. ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कहीं ना कहीं, इतना करेज कि चाहे आपके सामने मुमताज़ जी बैठी हों या जग्गू दादा बैठे हों, आप जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो बाकी जर्नलिस्ट बहुत शायद रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम आस्किंग. पता नहीं रिफ्रेन करते हैं या उनको पूछना नहीं है या इंटरेस्ट जी. नहीं है. मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ खपा हैं आप. कि क्यों कर रहे हैं ऐसा. क्योंकि bet the audience doesn't like those kind of vanilla interviews. Yeah. Audience is very intelligent. I've had people talking to me and saying that those days are gone when they wanted to see all those rhetoric questions that Ji. why you multitask, how are the trolls, trolling you, how do you tolerate it? Yeah. All these questions are done to death. And I they think don't, people are delusional. they don't require any answers anymore. जी. So विकी कभी कोई मुझसे पूछता है ना, honestly the situation is so bad Hmm. today, trust me, Kiran, in terms of asking the questions, that I wonder if there is light at the end of this tunnel. I don't know if there is. Hmm. Would you believe that truth prevails no matter what? I don't know. The times are so bad that you have lost the intensity in those statements that truth will prevail, justice will be done. Absolutely. एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हम सब समझ जाएंगे. Hmm. I am not being cynical. I am not being pessimistic. You're just being realistic. I don't know. Hmm. Whether where this is going. Yeah. But I knew when I was coming for this interview where it's going to go, because you know me, you must have done your research, and this is the first time ever on a public platform. I'm a very private person. When you asked me if I was in touch with industry people, I told you the few names, and they've always kept my privacy. So for me to have a platform जहाँ पे मैं आऊँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करूँ, और you know how social media is, people control you, people can judge you, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन कम से कम मुझे इतना पता था कि मैं एक honest इंसान के सामने बैठूँगी who has the courage to ask me questions that most people would not. I mean, journalists मुझसे अगर पूछें, is being an actor tough? Life is tough. Being an actor is easy. Being an actor is luxury. How often have you been asked, do you like positive roles or do you like negative roles? Very often. I like all kinds That of question I roles. have been hearing since 2000, Yeah. ever since I joined journalism. Do you like positive roles? I mean, as an actor, as long as the roles are having layers, you know, जैसे अभी मैंने 5th September film जो की, उसमें I'm shown as a very happy-go-lucky person, but the layers of darkness are revealed later. I like those kind of roles. And please, Vicky, in real life, nobody's totally positive and nobody's totally negative. We're human beings. We react, we respond to life as it happens to us whilst in the moment. So I don't like this distinction of absolutely negative, absolutely positive. I think in screenplay writing, those kind of characters need to be passé now. People, again, coming to what people like as content, people have their own intellect. आज आप किसी रिक्शे वाले से, ट्रक ड्राइवर भैया से भी बात करोगे ना, he is on social media. He has the ability to watch Netflix in his own language sitting in Bihar. So imagine the level of competition India has to do to keep up with Emily in Paris, let's say. You know? I can only say for my fraternity that which the journalists understand. There are a lot of other fraternities also which have gone haywire. Yes. Kiran, where does Kiran Dubey go from here? I have no idea. कुछ तो कहते हैं ना मंजिलें और भी हैं. अब मंजिलें फिर से वही हैं आपके भी जैसे. Okay, I'm not comparing you to, I'm not saying that you are Smriti Irani or Smriti Irani is Kiran Dubey. I'm saying that you are also wanting to come back to acting. For me, I do so many different things. So for me, it's not like the happiness of my life is about the roles I'm going to get or the roles I'm not going to get. I'm here because my film 5th September, which I'm happy and proud about, has recently released. I got to work with wonderful actors like Sanjay Mishra. बताइए कोविड में घर बैठे कितने एक्टर्स को काम मिलता है.
I'm very happy that I'm a part of that film. So I'm here because of the film 5th September, and how many people get work during COVID. This is a project that was offered to me while I was in my hometown, and I got to work with wonderful actors like Sanjay Mishra ji, Brijendra Kala ji, Deep Raj Rana, Kunal Shamsher Malla, जो इस फिल्म के एक्टर राइटर डायरेक्टर हैं, वो खुद एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं. उन्होंने इतनी प्यारी फिल्म बनाई. तो the larger picture will always be, we don't know. We don't know what's next. But from my side, you can be rest assured that whatever I'm going to do, it has to personally resonate with me, whether it's personal or it's professional. I must like it. Are you ready to go back to TV? OTT? OTT is absolute yes. I would love to do web series and I would love to do select cinema. Television, it would have to be a very curated, very interesting character on a great platform. But definitive. But definitive. It can't be indefinitive because I've said no to many indefinite Movies? projects. Absolutely. You know. But having said that, it's not like I have a line of people waiting to work with me. But I do believe that I bring a lot to the table. मेरा कभी भी ये नहीं होता है कि मैं ये रोल कर रही हूँ, मुझे इतना ही. मुझे लगता है I bring my entire being, my life, not just to the role, but to the production, to the set, to the people. I want to be a reason for joy just by being myself. That's what I feel I bring to the table. Thank you so much, Kiran, for doing this interview. It was great talking to you. Thank you, Vicky. It's been a pleasure. I'm glad we had a heart-to-heart. Namaste, friends. I'm Kiran Dubey, and I was recently featured in the Vicky Lalwani show. I was touched by his warmth, hospitality, and absolute professionalism. I would highly recommend for interesting content. Do like, share, and subscribe the Vicky Lalwani show.